Hello friends, today I am discussing about the most important chapter of science class 9th from which minimum 2 to 3 questions are asked in every exam. So it is most important, so let's start without wasting of time. Chapter number is 11. Chapter name is sound. Every day we hear sound from various sources like human, birds, bells, machines, vehicles, televisions, radio, etc. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. Sound क्या है? Forms of energy है which produces sensation of hearing our ears. जो मेरे कान में सेंसेशन सुनाई देता है, एक झंझनाहट सुनाई देता है. There are also other forms of energy like mechanical energy, light energy. और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं और भी ऊर्जा के रूप होते हैं जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी. वी हैव टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इज द प्रीवियस चैप्टर. यू हैव बीन टॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which states that we can neither create nor destroy energy. We can just change it from one form to another. जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी को न ही क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है. When you clap, a sound is produced. Can you produce sound without utilizing your energy? Which form of energy did you use to produce sound? In this chapter, we are going to learn how sound is produced and how it is transmitted through a medium and received by our ears. Now, we will discuss about production of sound. Activity: take a tuning fork and set it vibrating by striking its prong on a rubber pad. Bring it near your ear. Do you hear any sound? Touch one of the prongs of the vibrating tuning forks with your fingers and share your experience with your friends. Next. Now suspend a table tennis ball or a small plastic ball by a thread from a support. Take a big needle and a thread. Put knot at one end of the thread and then with the help of the needle pass the thread through the ball. Touch the ball gently with the prong of a vibrating tuning fork. Next. Observe what happens and discuss with your friends. ऑब्जर्व करना है क्या हुआ और अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है ये सब एक्टिविटीज सिचुएशन. हेयर फिगर 11.1 vibrating tuning fork just touching the suspended table tennis. Here is a thread. Here is a table tennis ball. Vibrating tuning fork is this. No activity is here. Fill water in a beaker or a glass up to the brim. Gently touch the water surface with one of the prongs of the vibrating tuning fork as shown in figure 11.2. Next, dip the prongs of the vibrating tuning fork in water as shown in figure 11.3. Observe what happens in both the cases. Next, discuss with your friends why this happens. Here 11.2, one of the prongs
of the vibrating tuning fork touching the water surface। यहाँ पे जो है ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक है, ये रखा हुआ जो है, जो कि ये जो ग्लास है, ग्लास में जो पानी है उसको टच कर रहा है। ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक हो गया, ये ग्लास हो गया, इसके अंदर क्या है, वाटर है। नेक्स्ट, इन फिगर 11.3 हेयर both the prongs of the vibrating tuning, here is a glass, water or vibrating tuning in topmost। okay, from the above activities what do you conclude? Can you produce sound without a vibrating object? In the above activities we have produced sound by striking the tuning fork. We can also produce sound by plucking, scratching, rubbing, blowing or shaking different objects. As per the above activities, what do we do to the objects? We set the objects vibrating and produce sound. Okay. Next. Vibration means a kind of rapid to and fro motion of an object. The sound of the human voice is produced due to vibration of the vocal cord. Vibration means kind of rapid to and fro, आगे पीछे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का आगे पीछे होना वाइब्रेशन कहलाता है। गॉट इट? The sound of the human voice is produced due to the vibration of vocal cord. मनुष्य के जो ह्यूमन के जो वोकल कॉर्ड होते हैं उसमें एक वाइब्रेशन होती है, उससे ही वॉइस प्रोड्यूस होता है, आवाज़ निकलती है। जो अभी हम बोल रहे हैं तो वोकल कॉर्ड के माध्यम से ही निकल रहा है। वहाँ पे वोकल कॉर्ड में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है एक, उससे आवाज़ बाहर निकलता है। When a bird flaps its wings, do you hear any sound? Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. A stretched rubber band, when plucked, vibrates and produces sounds. If you have never done this, then do it and observe the vibration of the stretched rubber band. Next activity. Make a list of different types of musical instrument and discuss with your friends which part of the instrument vibrates to produce sound. Next. Propagation of sound. Propagation of sound. Sound is produced by vibrating objects. The matter or substance through which sound is transmitted is called a medium. It can be solid, liquid or gas. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट यदि वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड, कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जिसके माध्यम से साउंड ट्रांसमिट होता है, गुजरता है, उसको हम क्या कहेंगे? माध्यम कहेंगे, मीडियम कहेंगे। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यह माध्यम जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। तो हम इससे यह कह सकते हैं कि साउंड जो है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी ट्रांसफ़र होता है। यह मीडियम हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस साउंड के ट्रांसमिट होने के लिए। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट of generation to the listener. When an object vibrates, it sets the particles of the medium around it vibrating. The particles do not travel all the way home. Okay.
The vibrating objects to the ear, a particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. Yes. It then exerts a force on the adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of rest. After displacing the adjacent particles, the first particles come back to its original position. This process continues in the medium till the sound reaches your ear. Got it? The disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium and not the particles of the medium. कोई भी डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होती है बाय सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम. किसी भी सोर्स, किसी भी माध्यम के द्वारा, वो माध्यम क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो मीडियम, अ सोर्स ऑफ साउंड्स इन द मीडियम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम. ये साउंड जो है मीडियम टू मीडियम ट्रेवल करता है एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. उसमें जो डिस्टर्बेंस होती है तो किसी भी पार्टिकल जो होती है, पार्टिकल के माध्यम से वो मीडियम नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है. नेक्स्ट, अ वेव इज डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन. They in turn produce similar motion in others. The particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. This is what happens during propagation of sound in a medium. Hence, sound can be visualized as a wave. Okay. Sound waves are characterized by the motion of particles in the medium and are called mechanical wave. Air is the most common medium through which sound travels. Okay. When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. This region is called compression. Got it? Compression C, as shown in figure 11.4. Thus, compression starts to move away from the vibrating object. When the vibrating object moves backward, it creates a region of low pressure is called rarefaction, as shown in figure 11.4. As the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction is created in the air. These make the sound wave that. यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, यदि वो मूव्स फॉरवर्ड होगा, आगे मूव्स करेगा, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस. तो यहाँ पे एयर जो है पुशेस मतलब दबाया जाएगा और कंप्रेस होगा मतलब सिकुड़ेगा. इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग अ रीजन इस ऑफ हाई प्रेशर. यहाँ पे जो एक सामने हाई प्रेशर क्रिएट होगा इसे हम कहेंगे क्या? कंप्रेसेशन. इसी के अपोजिट यदि दिस कंप्रेसेशन स्टार्ट मूव अवे, जब यह कंप्रेसेशन मूव अवे फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव बैकवर्ड, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, देन इट क्रिएट्स अ रीजन. फिर उसके बाद एक रीजन क्रिएट होगा और लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा. यदि बैकवर्ड आएगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेयरफैक्शन. यदि वही मूवमेंट, वही वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यदि
फॉरवर्ड जाता है तो कंप्रेसेशन होता है, वहीं यदि बैकवर्ड आता है तो रेरफैक्शन होता है। गॉट इट। नेक्स्ट हेयर 11.4 में बताया गया है, अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ कंप्रेसेशन, ओके, सी एंड रेरफैक्शन आर इन द मीडियम। रेयरफैक्शन आर इन द मीडियम, यहाँ पे जो आर है यहाँ पे रेयरफैक्शन हुआ है, गॉट इट। लेकिन वहीं जो ये सी है ये, इसमें क्या हुआ है, कंप्रेसेशन हुआ है, मतलब सिकुड़ना। रेयरफैक्शन मतलब फैलना कह सकते हो आप, लेकिन इसकी कुछ रीजनें हैं। जैसे रेयरफैक्शन में क्या होगा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव बैकवर्ड हो जाएगा, उसके बाद जो क्रिएट होगा रीजन लो प्रेशर में, उसको हम रेयरफैक्शन कहेंगे। लेकिन कंप्रेसेशन की बात जो है, यदि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड होगा, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस इन एयर इन फ्रंट ऑफ क्रिएटिंग अ रीजन हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा रीजन हाई प्रेशर के लिए, दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेसेशन। जो रीजन क्रिएट होगा इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेसेशन कहेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम, कंप्रेसेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कंप्रेसेशन क्या होता है, यह एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। एंड रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। रेयरफैक्शन वैसा रीजन है जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर। यदि किसी भी पार्टिकल्स में, किसी भी मीडियम में यदि मोर डेंसिटी होगी, ज़्यादा घनत्व होगा, तो मोर प्रेशर क्रिएट होगा। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर। यदि किसी भी मीडियम में ज़्यादा मात्रा में पार्टिकल्स होंगे, ज़्यादा घनत्व होंगे, मोर डेंसिटी होंगे, तो मोर प्रेशर होगा, एंड वाइस वर्सा। गॉट इट। Thus propagation of sound can be visualized as propagation of density variation or pressure variation in the medium. Okay, now we will discuss about sound waves are longitudinal wave. Activity: take a slinky, ask your friends to hold one end, you hold the other end. Now stretch the slinky as shown in figure 11.5a. Then give it a sharp push towards your friends. Next, what do you notice? If you move your hand pushing and pulling the slinky alternative, what will you observe? If you mark a dot on the slinky, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel. Got it? To the direction of the propagation of the disturbance. Okay, here 11.5 longitudinal wave in a slinky. longitudinal wave क्या होता है, ये आप देख रहे हो, इसको स्प्रिंग कहते हैं या स्लिंकी कहते हैं। यदि कोई भी वेव आगे पीछे हो रहा है, जैसे ये आगे और पीछे हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। गॉट इट। इफ यू मार्क अ डॉट ऑन द स्लिंकी, यू विल ऑब्जर्व दैट द डॉट of the slinky will move back and forth parallel to the direction of propagation of the disturbance.
देख रहे हो, सेम वही बात यहाँ पे बताया गया है। तो होप आप समझ गए होंगे। आगे पीछे तो फिर उसको क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। गॉट इट। द रीजन्स where the coils become closer are called compression, C, and the regions where the coil are further apart are called rarefaction. Okay, as we already know, sound propagates in the medium as a series of compression and rarefaction. Now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium. These waves are called longitudinal waves. क्या बताया गया है यहाँ पे, वी कैन कंपेयर द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी विद साउंड प्रोपेगेशन इन द मीडियम. दिज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. जैसा कि हमने देखा था, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या हुआ था, उस स्लिंकी में क्या हुआ था, आगे पीछे जो डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट होगी, उत्पन्न होगी, जो माध्यम है आगे पीछे यदि साउंड प्रोपेगेट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो उसे हम ही क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे. इन दिस वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस. यहाँ पे पैरेलल होगा, मतलब समांतर होगा. वो स्लिंकी जो है, स्प्रिंग जिसको कहते हैं, उसके अंदर वो एक तो पैरेलल है, तो उसके अंदर यदि कोई भी वेव क्रिएट हो रहा है, आगे पीछे यदि कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे. नेक्स्ट, द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर बट दे सिंप्लीफाई ऑस्किलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट. दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड wave propagates, hence sound waves are longitudinal waves. The particles do not move from one place to another but they simply oscillate back and forth about their position. जब कोई पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहा है, डू नॉट मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, एक पैलेस से दूसरे जगह मतलब मूव नहीं कर रहा है, बट दे सिंप्लीफाई ऑस्किलेट बैक एंड फोर्थ, मतलब सिंपली ये कह सकते हो कि वो अपने ही जगह पे, जैसे वोकल कैविटी है, वो अपने जगह पे ऑस्किलेट हो रहा है. ओके, देयर पोजिशन एट ऑफ रेस्ट. दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपेगेट्स, हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. इसलिए हम कह सकते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोपेगेट्स जो होता है, इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहेंगे. देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव. इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑस्किलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन बट ऑस्किलेट अप एंड डाउन about their mean position as the wave travels. जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या हो रहा था, ये आगे जा रहा था या पीछे जा रहा था, मतलब इसी में आगे पीछे जा रहा था. लेकिन वहीं लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ये हो रहा है. वहीं ट्रांसवर्स की बात कहा जाए, ट्रांसवर्स वेव की बात किया जाए, तो ट्रांसवर्स वेव में ऊपर और नीचे जाएगा. गॉट इट. ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑस्किलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन बट ऑस्किलेट अप एंड डाउन, ऊपर और नीचा, अबाउट देयर मीन पोजिशन. गॉट इट. Thus a transverse wave is the one in which the individual particles of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of a propagation. When we drop a pebble in a pond, the waves you see on the water surface is an example of transverse wave. Okay.
Light is a transverse wave, but for light, the oscillations are not of the medium particles or their pressure or density. It is not a mechanical wave. क्या कहा गया है यहाँ पे? Light is a transverse wave, but for light, the oscillations are not of the medium particles or their pressure or density. It is not a mechanical wave. लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, बट फॉर लाइट ऑस्किलेशंस आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ऑफ देयर प्रेशर और डेंसिटी। यहाँ पे कोई प्रेशर और डेंसिटी, लाइट में प्रेशर और डेंसिटी की कुछ बात नहीं होती है, तो इसको हम इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव, इसको हम इसलिए मैकेनिकल वेव की संज्ञा नहीं देंगे। यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव इन अ हायर क्लास। आप ट्रांसवर्स वेव के बारे में हायर क्लास में और अच्छे से सीखेंगे। गॉट इट? नो वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। We can describe a sound wave by its frequency, amplitude and speed. हम साउंड वेव को डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके फ्रीक्वेंसी के आधार पे, उसके एम्पलीट्यूड के आधार पे और स्पीड के आधार पे। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, एम्पलीट्यूड आयाम, स्पीड गति। अ साउंड वेव इन अ ग्राफिक फॉर्म्स इज शोन in figure 11.6c, which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium. The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value of density and pressure, figure 11.6a and figure 11.6b represents the density and pressure variation respectively as a sound wave propagates in the medium. Compression are the regions where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve in figure 11.6c. The peak represents the region of maximum compression. Thus, compressions are regions where density as well as pressure is high. Okay. Rarefaction are the regions of low pressure where particles are spread apart and are represented by the valley that is the lower portion of the curve in figure 11.6c. Okay. A peak is called the crest and a valley is called the trough of a wave. Got it? यदि कोई भी वेव उत्पन्न होता है, मतलब तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होता है, गॉट इट, उसके ऊपर वाले भाग को, ऊपर जो ऊपर नीचे, यदि हम साउंड प्रोड्यूस होती है तो ऊपर नीचे भी होती है, सामने लॉन्गिट्यूडिनल भी होती है और ट्रांसवर्स भी होती है। तो यदि ट्रांसवर्स हो रही है तो जो टफ वाला होगा, जो ऊपर होगा टॉप पे, उसको हम क्रिस्ट कहेंगे, और वैली नीचे, वैली इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ द वेव, और नीचे जो होगा उसको हम ट्रफ कहेंगे। गॉट इट? द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compression C or two consecutive rarefaction R is called wavelength. दो consecutive compression और दो consecutive rarefaction की दूरी को हम wavelength कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। As shown in figure 11.6c, the wavelength is usually represented by lambda, Greek letter lambda. Okay, its SI unit मीटर। वेवलेंथ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीक लैम्डा से।
ग्रीक लेटर लैम्डा से। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। गॉट इट। यहाँ पे 11.6 में आप देख सकते हो, साउंड प्रोपेगेट्स एज डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन एज शोन इन A and B. C represents graphically density and pressure variation. यहाँ पे C में देखो आप, ये डेंसिटी, ये नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। ये नीचे वाले जो है, ये वेव प्रोड्यूस हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये नीचे वाले को क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। और ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। CREST, क्रस्ट, ये क्रेस्ट कहते हैं। गॉट इट। और दो क्रस्ट और दो, यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था, ये दो क्रस्ट है, दो ये रेयरफैक्शन है, इसके बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्रस्ट और ट्रफ के बीच के दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये जो पूरा दूरी होती है ना, उसको ही हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। गॉट इट। नो वी विल डिस्कस अबाउट Henry Rudolph Hertz was born in 22 February 1857 in Hamburg, German, and educated at the University of Berlin. He confirmed J.C. Maxwell's electromagnetic theory by his experiments. He laid the foundation for future development of radio, telephone, telegraph, and even television. He also discovered the photoelectric effect, which has later explained by Albert Einstein. Okay, the SI unit of frequency was named as Hertz in his honor. Got it? Frequency tells us how frequently an event occurs. Suppose you are beating a drum. How many times you are beating the drum in unit time is called the frequency of your beating the drum. We know that when sound is propagates through a medium, the density of the medium oscillates between a maximum value and a minimum value. The change in density from the maximum value to the minimum value, then again to the maximum value, makes one complete oscillation. Okay, the number of such oscillation per unit time is the frequency of the sound wave. Okay, if we can count the number of the compensation or rarefaction that cross us per unit time, we will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by V, Greek letter, and U. Its SI unit is Hertz, symbol Hz. Got it? The time taken by two consecutive compressions or rarefaction to cross a fixed point is called the time period of the wave. In other words, we can say that the time taken for one complete oscillation is called the time period of the sound wave. It is represented by the symbol capital T. Its SI unit is second as. Frequency and time period are related as follows: V equal to L by T. Got it? A violin and a flute may both be played at the same time in an orchestra. Both
Sounds travel through the same medium, that is air, and arrive at our ear at the same time. Both sounds travel at the same speed, irrespective of the source, but the sounds were but the sounds we receive are different. This is due to different characteristics associated with the sound. Pitch is one of the characteristics. Got it? How the brain interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch. The faster the vibration of the source, the higher is the frequency and the higher is the pitch. यदि किसी भी साउंड का फ्रीक्वेंसी हायर होगा और हायर पिच होगा, तो यदि किसी भी व्यक्ति का हायर पिच होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी हायर होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि लड़कियों का जो होता है हायर फ्रीक्वेंसी होता है, उसका टोन जो होता है, मतलब कोई जो बोलती है उसका फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली बॉयज़। गॉट इट? तो इसको ध्यान रखना है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, the higher is the frequency and the higher is the pitch, as shown in figure 11.7. Thus, a high pitch sound corresponds to more number of compression and rarefaction passing a fixed point per unit time. Got it? Objects of different size and condition vibrate at different frequency to produce sound of different pitch. The magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called the amplitude of the wave. It is usually represented by the letter A. क्या कहा गया यहाँ पे? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए. एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरी बात, यदि मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हो रही है किसी भी मैग्नीट्यूड में, मतलब किसी भी मीडियम में यदि मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड परिमाण निकलेगा उसी के मीन को हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे. गॉट इट? हेयर फिगर 11.7, वेव डिस्टर्बेंस, वेव शेप फॉर अ लो पिच्ड साउंड. यहाँ पे ये देख रहे हो आप, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो है पिच साउंड लो है. यहाँ पे वेव डिस्टर्बेंस जल्दी जल्दी हो रहा है, ये जल्दी जल्दी हो रहा है. वेव शेप फॉर अ हाई पिच, यहाँ पे हाई पिच भी होगा, हाई फ्रीक्वेंसी भी होगा, टाइम कम होगा. लेकिन यहीं पे वेव डिस्टर्बेंस यहाँ पे ज़्यादा दूर दूर पे हो रहा है, मतलब कम हो रहा है. इसका पिच जो होगा कम होगा और इसका टाइम इसके इक्विवेलेंट ही होगा. गॉट इट? लो पिच साउंड हैज़ लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच साउंड हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी. जिसका पिच ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी ज़्यादा होगा, मतलब वो जल्दी जल्दी करेगा. जिसका पिच ज़्यादा होगा ना, उसके साउंड में फ्रीक्वेंसी भी जल्दी जल्दी होगा, हाई होगा. गॉट इट? जिसका लो पिच होगा उसके साउंड में लो फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति जो है बहुत धीरे धीरे और कम होगा. ये कम हो रहा है ना. गॉट इट? एज शोन इन फिगर 11.6c,
For sound, its unit will be that of density or pressure. The loudness or softness of a sound is determined basically by its amplitude. किसी भी साउंड का लाउडनेस और सॉफ्टनेस, आवाज़ कितना तीक्ष्ण है, तीखा है और कितना सॉफ्ट है, मतलब मधुर है, ऑफ अ साउंड डिटरमाइंड बाय बेसिकली इट्स एम्पलीट्यूड। यह जो है बेसिकली किस पे डिटरमाइन किया जाता है, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन द फोर्स विद व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है कि कितना वाइब्रेशन हुई है, डिपेंड अपॉन द फोर्स, कितना फोर्स लगा है और उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन कितना हुआ है। इफ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली वी हियर सॉफ्ट साउंड बिकॉज वी प्रोड्यूस अ साउंड वेव। गॉट इट? यदि हम इफ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली, यदि हम किसी भी टेबल को बहुत कम मात्रा में लाइटली उसको स्ट्राइक करते हैं, ठोकते हैं, तो हम सुनेंगे सॉफ्ट साउंड सुनेंगे। वहीं यदि तेज से स्ट्राइक करेंगे, तेज से आवाज़ उसमें धक्का लगाएंगे या तेज से उस पर चोट करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्ट साउंड नहीं सुनाई देगा, वो हाई साउंड सुनाई देगा। Here figure 11.2 soft sound has a small amplitude and louder sound has large amplitude। जिसका louder sound होगा उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ये आप देख रहे हो, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये louder sound है, मतलब तेज बोल रहा है। जो louder sound होगा उसका आवाज़ भी बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन वही सॉफ्ट साउंड जो है वो धीरे से यदि कोई बोल रहा है तो इसका वेव डिस्टरबेंस भी बहुत कम होगा और ये सॉफ्ट साउंड कहलाएगा। गॉट इट? ऑफ लेस एनर्जी एम्पलीट्यूड इफ वी हिट द टेबल हार्ड वी हियर अ लाउडर साउंड। यदि जोर से हिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लाउडर साउंड आएगा। कैन यू टेल व्हाई अ साउंड वेव स्पीड आउट फ्रॉम इट्स सोर्स as it moves away from the source its amplitude as well as its loudness decreases। जैसे ही हम दूर चले जाते हैं तो मुझे लाउडनेस जो है कम सुनाई देता है, मतलब जितना ज़ोर से हम लाउडनेस, यदि हम किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी टेबल को या किसी भी चीज़ को XYZ को, तो जितना ज़ोर से उस पर एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना दूर तक आवाज़ जाएगा। यदि हम उससे भी दूर यदि कोई आदमी चला जाएगा तो उसको कम आवाज़ सुनाई देगा। लाउडर साउंड कैन ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस। लाउडर साउंड की ज़्यादा डिस्टेंस, दूरी सुनाई देता है, ठीक है। एज इट इज एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी, और इसमें हायर एनर्जी होती है। फिगर 11.8 सो द वेव शेप्स of a loud and a soft sound of the same frequency। Got it? The quality of timbre of sound is that characteristics which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। The quality or timbre of sound is that characteristic which enables us distinguish one sound from another sound having same pitch or loudness। किसी भी साउंड का जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी कि ये सेम पिच है, सेम आवाज़ है, सेम लाउडनेस है या नहीं, उसके टिम्बर पे डिपेंड करता है। उसका क्वालिटी टिम्बर पे डिपेंड करता है कि कोई भी साउंड सेम है या डिफरेंट है। Got it? The sound which is more pleasant is said to be rich quality। जो साउंड
जो आवाज़ सुनने में प्लेजेंट मतलब खुशी होगी, सुन के मधुर होगा, वह रिच क्वालिटी का होगा। अ साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। यदि भी कोई भी साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी की होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? टोन कहेंगे। द साउंड which is produced due to mixture of several frequency, वैसा साउंड, वैसा ध्वनि जिसमें मैक्सिमम मिक्सचर होगा, सेवरल फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के मिक्सचर होगा, कॉल्ड अ नोट एंड प्लेजेंट। तो उस तरह की ध्वनि जो होगी, साउंड जो होगी, वह तो सुनने में प्लेजेंट भी हो सकती है, मधुर भी हो सकती है, और नॉइजिंग भी हो सकती है। तो नॉइज इज अनप्लेजेंट टू द ईयर। नॉइज जो होता है उसको हम अनप्लेजेंट मतलब अमधुर साउंड कहते हैं। म्यूजिक इज अ प्लेजेंट टू हियर एंड इज ऑफ रिच क्वालिटी। म्यूजिक जो होता है, कोई भी गाना, वो प्लेजेंट होता है, सुनने में मधुर होता है, वो रिच क्वालिटी का होता है। गॉट इट? नेक्स्ट, the speed of sound is defined as the distance which a point on a wave, such as a compression or a rarefaction, travels per unit time. We know speed v equal to distance by time equal to lambda by t. Here lambda is the wavelength of the sound wave. It is the distance traveled by the sound wave in one time period t of the wave. Thus v equal to lambda v, चूँकि 1/t equal to v और v equal to lambda v, that is speed equal to wavelength into frequency. Okay, the speed of sound remains almost the same for all frequency in a given medium under the same physical condition. Got it? Next, the amount of sound energy passing each second through unit area is called the intensity of sound. We sometimes use the term loudness and intensity interchangeably, but they are not the same. Got it? Loudness is a measure of the response of the ear to the sound. Even when two sounds are of equal intensity, we may hear one as louder than the other simply because our ear detects it better. The amount of sound energy passing each second, कोई भी ध्वनि जो है यदि पास कर रहा है हर एक सेकंड में थ्रू यूनिट एरिया, किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसे उस साउंड का इंटेंसिटी कहेंगे। वी समटाइम्स यूज द टर्म लाउडनेस। हम कभी कभी टर्म्स यूज करते हैं लाउडनेस मतलब तेज आवाज़, ऊंची आवाज़, एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली, और इंटेंसिटी के बारे में, इसका इंटेंसिटी बहुत तेज है या बहुत कम है, इसको एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं। बट दे आर नॉट सेम, बल्कि ऐसा है कि ये दोनों लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। नो वी विल डिस्कस अबाउट साउंड का स्पीड जो है डिफरेंट मीडियम में क्या रहता है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। गॉट इट? साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू अ मीडियम at a finite speed. The sound of a thunder is heard a little later than the flash of light is seen. आपने
कभी थंडर जो गिरती है, आकाश से जो बिजली गिरती है, लाइट जो वो होता है, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है आवाज़ सुनाई देती है। द साउंड ऑफ थंडर इज हियर्ड अ लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। पहले बिजली की जो लाइटनिंग है वो लाइटनिंग पहले दिखाई देता है, फिर उसके बाद वो आवाज़ सुनाई देता है। लिटिल लेटर मतलब स्लाइटली, मतलब पहले वो आकाश में जो लाइट दिखता है, जब बारिश के मौसम में बिजली कड़ाके की वो चमकती है, तो पहले लाइट दिखता है, उसके देन स्लाइटली थोड़ा देर के बाद, मतलब जस्ट थोड़ा देर के बाद नहीं, जस्ट उसके बाद वो आवाज़ थंडर का आवाज़ सुनाई देता है। सो वी कैन मेक आउट दैट साउंड ट्रेवल्स विद अ स्पीड विच इज मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। तो इसे हम यह कह सकते हैं, इसे यह हम अनुमान लगा सकते हैं, ध्वनि जो है साउंड, उसकी जो ट्रैवल करने की जो स्पीड है, मतलब यात्रा करने की जो स्पीड है, लाइट के कंपेरेटिवली कम है। मतलब लाइट की स्पीड जो है किसी भी माध्यम में ज़्यादा है, और साउंड की जो है किसी भी माध्यम में उसकी जो स्पीड है कम है कंपेरेटिवली लाइट। गॉट इट? द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। किसी भी माध्यम में जब हम साउंड की ट्रैवल की स्पीड की बात करते हैं, तो हर एक माध्यम में स्पीड ऑफ साउंड जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसा कि हम जानते हैं, आप जानते हो, सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में। मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होती है और गैसेस में सबसे कम। वही निर्वात की बात कहा जाए, जहाँ पे साउंड, मतलब जहाँ पे हवा ना हो, उसमें साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकती है, क्योंकि साउंड को माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। किसी भी ध्वनि की जो स्पीड है उसके माध्यम पे डिपेंड करता है, साथ में उस माध्यम की टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा जब हम सॉलिड से गैस में जाएंगे। मतलब यदि कोई भी माध्यम सॉलिड है, वहाँ से हम यदि साउंड को ट्रेवल करवा रहे हैं, फिर उसके बाद आगे गैस है, तो सॉलिड में तो साउंड स्पीड जाएगी, लेकिन जैसे ही गैस में जाएगी, गैसेस स्टेट में, तो उसका स्पीड जो है डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। किसी भी माध्यम में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 331 मीटर पर सेकेंड at 0 degree Celsius. Got it? And 344 meter per second at 22 degree Celsius. माध्यम क्या है, एयर ही है, लेकिन यदि 0 डिग्री सेल्सियस है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 331 मीटर पर सेकेंड। वहीं यदि टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस हो गया तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया, 344 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब तुरंत 331 से 344 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर। गॉट इट?
and medium. Next, the speed of sound at a particular temperature in various medium listed in table 11.1. You need not memorize the value. इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्टेट दे रखा है, ये सब्सटेंस दे रखा है, ये स्पीड इन मीटर पर सेकेंड दे रखा है. स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस. गॉट इट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड में जो है सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड है, लिक्विड में उससे कम है, लेकिन गैस में सबसे कम है. लेकिन सॉलिड में सबसे ज़्यादा, सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड है, और वहीं सॉलिड में ग्लास फ्लिंट में सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड है. वहीं लिक्विड की बात किया जाए तो वाटर सी, समुद्र का जो पानी होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड है. लेकिन वहीं मिथेनॉल लिक्विड की बात की जाए तो उसमें सबसे कम है. वहीं गैसेस में देखा जाए तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा स्पीड है साउंड का. सबसे कम स्पीड किस में है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में. तो आप इसको मेमोराइज नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा. गॉट इट. नो वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड bounce of a solid or a liquid like a rubber ball bounce off a wall. साउंड जो है रिफ्लेक्ट करता है. कैसे? जैसे आप यदि गेंद खेलते होंगे तो आप यदि दीवार में मारते हो, यदि हाथ से फेंकते हो तो दीवार से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है और बाउंस बैक होता है. ठीक उसी प्रकार साउंड भी बाउंस बैक होता है. लाइक लाइट, sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and as follows. The same law of reflection as you have studied in earlier classes. The direction in which the sound is incident and is reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of incidence, and the three are in the same plane. जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं. जितना एंगल से कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होती है वो प्रकाश, और उसके बीच में एक अभिलंब नॉर्मल खींचा जाता है. ठीक उसी प्रकार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है. जिस एंगल से वो आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, और उस पर यदि नॉर्मल डालेंगे तो जिस तरह प्रकाश का ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम है, ठीक उसी को फॉलो करती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी. गॉट इट. तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब. एन ऑब्स्टेकल ऑफ लार्ज साइज विच में बी पॉलिश्ड और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. नो वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी. टेक 2 आइडेंटिकल पाइप्स एज शोन इन फिगर 11.9. 2 आइडेंटिकल क्या करना है? पाइप ले लेना है. इसको हम देखते हैं, नीचे फिगर में दिया हुआ है. ये 2 पाइप ले लिया गया. नो वी विल डिस्कस अबाउट इको. इफ वी शूट और क्लैप नियर अ सुटेबल reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later.
दिस इज साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको। यदि हम किसी सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास, या तो टॉल बिल्डिंग हो सकता है या एक माउंटेन पर्वत हो सकता है, यदि हम क्लैप ताली बजाते हैं या कुछ आवाज़ करते हैं, यदि उस माउंटेन और उस टॉल बिल्डिंग की डिस्टेंस यदि मेंटेन किया हुआ हो, तो उससे यदि एक आवाज़ प्रोड्यूस हुआ, यदि हम वहाँ पे क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं या कुछ आवाज़ साउंड करते हैं, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होके यदि वो मुझे साउंड सुनाई देता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। इफ़ वी शूट और क्लैप नियर अ सुटेबल होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन, वी विल हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। दिस साउंड which we hear is called an echo. Got it? The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. जो मैंने बोला है, यदि मैंने क्लैप किया है, वो यदि आवाज़ मुझे रिफ्लेक्ट होकर सुन रहे हैं, तो उसका जो है टाइम इंटरवल जो है 0.1 सेकेंड होगा, यदि वो सूटेबल स्थान पे, एक सूटेबल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इफ़ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 344 मीटर पर सेकेंड एट अ गिवन टेम्परेचर, से एट 22 डिग्री सेल्सियस इन एयर, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on reflection after 0.1 second. Hence, यदि हम स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर प्रति सेकेंड लेते हैं, टेम्परेचर क्या इन एयर 22 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे रिफ्लेक्टिंग इको जो सुनाई देगा, यदि किसी भी ऑब्स्टेकल से टकरा के वो रिटर्न हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वह 0.1 सेकेंड में ही रिफ्लेक्ट होके मुझे सुनाई देगा। नेक्स्ट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट 344 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड इक्वल टू 34.4 मीटर। यदि वो रिफ्लेक्टिंग साउंड जो हो रहा है, जहाँ से जनरेट किया गया, यदि हम कहीं से बोल रहे हैं और मेरे मुंह से जो मैं बोल रहा हूँ और सामने से यदि रिफ्लेक्ट होके मेरे पास सुनाई दे रहा है, तो जहाँ से मैंने बोला तो यहाँ से जनरेट हुआ साउंड, और फिर उसके बाद ऑब्स्टेकल से टकराया, फिर उसके बाद मेरे पास जब आएगा, तो उस दोनों बीच की जो दूरी है जाने की और आने की, जहाँ से इनिशियल पॉइंट से जहाँ से जनरेशन हुआ साउंड, वहाँ पे यदि फिर रिफ्लेक्ट होकर आ गया, तो दोनों की बीच की दूरी 34.4 मीटर होगी। दस, फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इको, यह गंतव्य स्थान का क्या है, इको का जो है डिस्टेंस है। गॉट इट? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स of sound must be half of this distance, that is 17.2 मीटर। तो जाने आने का 34.4 मीटर हो गया, लेकिन ऑब्स्टेकल से जहाँ पे जनरेट हुई है उसकी दूरी की बात यदि किया जाए, रिफ्लेक्टिंग साउंड की उसकी डिस्टेंस की बात की जाए, तो 17.2 मीटर होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इको जो कोई भी आदमी सुनता है तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, मतलब एक्चुअल
मिनिमम नहीं, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होती है, तो 17.2। यदि टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो फिर 34.4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल में आने और जाने दोनों हो जाएगा। जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो वहीं पे यदि पहुँचेगा तो 34.4 हो जाएगा, लेकिन ऑब्स्टेकल से या किसी पहाड़ से या किसी बिल्डिंग से टकरा के यदि रिफ्लेक्ट हुआ है तो उसके बीच की दूरी 17.2 मीटर होगी। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। यह डिस्टेंस जो है ये एयर के टेम्परेचर यदि चेंज होगा तो ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। यदि टेम्परेचर एयर का चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे तो टेम्परेचर कितना लिया गया था 22 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यदि इसको चेंज कर दिया जाएगा तो फिर उसके बाद डिस्टेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर प्रति सेकंड था। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। गॉट इट? इको मे बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। The rolling of thunder is due to the successive reflection of the sound from a number of reflecting surfaces such as clouds and the land. इसी वजह से क्या होता है, जब ठंडर होती है, बिजली कड़ाके गिरती है, तो सबसे पहले लाइट दिखाई देता है, फिर उसके बाद साउंड सुनाई देता है। The rolling of thunder is due to successive reflection of the sound from number of reflecting surfaces such as clouds and land. क्लाउड्स, बादल की घड़घड़ाहट जो होती है उसमें एक्चुअली होता है क्या है, बहुत सारे सक्सेसिव मतलब लगातार कंटिन्यू रिफ्लेक्ट होती रहती है साउंड, और बिजली का कड़कना जो आवाज़ जो सुनाई देता है उसमें भी एक वाइब्रेशन टाइप से होता है। तो सक्सेसिव वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है तो सक्सेसिव साउंड सुनने में आता है और उसका आवाज़ कुछ डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. Okay, the repeated reflection that results in this persistence of sound is called reverberation. यदि आप किसी मॉल में, किसी हॉल में या कहीं पे आप बहुत बड़ा हॉल में यदि आप हो, वहाँ पे आप यदि कुछ बोलते हो तो चारों तरफ से जो आवाज़ फिर गूंजने लगती है बार बार। यदि आपने कुछ बोला वही बात यदि रिपीटेशन हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन। यदि इको का केस होगा तो जो आपने बोला क्लियरिटी आपको वहीं सुनाई देगा, लेकिन इको का केस यदि नहीं होगा, उसका डिस्टेंस और उसका टेम्परेचर, उसका स्पीड यदि इक्वल नहीं होगा, यदि एक ही चीज़ की रिपीटेशन हो रही है तो वहाँ पे रिवर्बरेशन होगी। गॉट इट? इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल टू रिड्यूस रिवर्बरेशन द रूफ एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम। इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए कोई भी साउंड बार बार रिफ्लेक्ट ना हो तो ऑडिटोरियम जो होती है
To reduce reverberation, the roof and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent. साउंड एब्जॉर्बेंट। इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए ऑडिटोरियम में या किसी भी पिक्चर में, जो आप पिक्चर वगैरह देखने जाते हो, फिल्म वगैरह, मूवी वगैरह, तो वहाँ पे साउंड एब्जॉर्बेंट लगा दिया जाता है, जिससे एक ही साउंड जो है बार बार रिपीटेशन ना हो। और ऑडिटोरियम में जो भी, और जो हॉल में जो बैठा हुआ है उसको जो भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जो भी आप मूवी देख रहे हो, वो सही से सुन पाए। साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रैपर्स। साउंड एब्जॉर्बेंट के लिए मटेरियल में क्या यूज कर सकते हो आप? कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर, मतलब प्लास्टर रफ कर दो आप, खुरदरा टाइप से, खुरदरा एंड ड्रैपर्स। द सीट materials are also selected on the basis of their sound absorbing properties। जो रिसोर्ट हॉल में या ऑडिटोरियम में जो बैठने का जो सीट लगा हुआ रहता है, उसमें भी वो फंक्शन कर दिया जाता है। सीट में जो मटेरियल होते हैं बैठने वाले पे, उसमें भी एक एब्जॉर्बर की तरह जो रिवर्बरेशन होती है, जो आवाज़ गूंजने वाली होती है, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। गॉट इट? नो, वी विल डिस्कस अबाउट यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो हम इसको जानेंगे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या यूज है, क्या उपयोग है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या यूज है। मेगाफोन्स और लॉर्ड हेलर्स, horns, musical instruments such as trumps and shehnais are all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all direction as shown। यहाँ पे हॉर्न और मेगाफोन दिखाया गया है। इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने के लिए ही उस तरह से इसको बनाया जाता है कि यह साउंड जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विदाउट स्प्रेडिंग ऑल डायरेक्शन, मतलब हर एक तरफ न आवाज़ गूंजे, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में आवाज़ गूंजे और वाइब्रेट करे और अच्छा खासा प्रोड्यूस करे। ये आप भोपू देखे होंगे, जो पहले पुराने ज़माने में रिक्शा वगैरह में लगाया दिया जाता है। ये मेगाफोन आप देख सकते हो, ये इसी का यूज, यहाँ पे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज होता है। इन दिज इंस्ट्रूमेंट्स अ ट्यूब फॉलोवेड बाय अ कॉनिकल ओपनिंग रिफ्लेक्ट साउंड सक्सेसिवली टू गाइड मोस्ट ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द ऑडियंस। ये मेगाफोन वगैरह जो भी है, ये हॉर्न, वो पर्टिकुलर किसी एक दिशा में फॉरवर्ड होता है और ऑडियंस को वो सुनाई देता है। गॉट इट? नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, मेनली इन द हार्ट और लंग्स। स्टेथोस्कोप जो है एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बॉडी के हार्ट, मेनली बॉडी के हार्ट और लंग्स में जो आवाज़ होती है, हार्ट जो आवाज़ करती है, हार्ट बीट, और लंग्स, उसको सुनने के लिए यह इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। किसका? स्टेथोस्कोप का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेथोस्कोप का यूज कहाँ होता है? तो हार्ट और मेनली इन द हार्ट और लंग्स के लिए। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट
हार्ट बीट रीच द डॉक्टर ईयर्स बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यदि स्टेथोस्कोप को किसी भी पेशेंट के हार्ट के पास लगाया जाता है तो उसका जो साउंड डॉक्टर के कान में सुनाई देता है, क्योंकि कान में एक वो लगा रखा रहता है। देखिए यहाँ पे एक बच्चे को ये स्टेथोस्कोप लगाया है और यहाँ पे ये सुन रहा है। गॉट इट? जनरली द सीलिंग of concert halls, conference halls and cinema halls are curved so that sound after reflection reach all corners of the halls. Generally ceiling of concert hall, जो सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं, कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, सिनेमा हॉल, आर कर्व्ड, उसको कर्व्ड बना दिया जाता है। so that sound after reflection reach all corners of the hall, इसलिए उसको सिनेमा हॉल को के सीलिंग को कॉर्नर को कर्व्ड कर दिया जाता है, बिकॉज जो भी उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होके सभी इंसान के पास, सभी व्यक्ति के पास पहुँचे। Okay. Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that sound after reflecting from soundboard spreads evenly across width of the hall. Got it? और सिनेमा हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल, कंसर्ट हॉल में ये रिफ्लेक्ट होने के लिए तो जनरली सीलिंग को कर्व्ड बनाया जाता है, लेकिन साथ में उसमें जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्बेंट भी लगाया जाता है। गॉट इट? यहाँ पे आप फिगर 11.2 में देख सकते हो कर्व्ड सीलिंग ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हॉल। ये आवाज़ यहाँ से जैसे साउंड प्रोड्यूस हुआ तो ये रिफ्लेक्ट होके ये जितने भी बैठे हुए हैं लोग उसको सुनाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे जो है, जहाँ पे ये लोग बैठा हुआ है आवाज़ तो सुन रहा है, लेकिन इसके पीछे एक आवाज़ को एब्जॉर्ब करने वाला, होल्ड करने वाला वो भी लगा दिया जाता है, क्योंकि आवाज़ ये सुन लिया फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाए। यदि एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आवाज़ एक ही तरह की आवाज़ क्या होगा, गूंजने लगेगा। तो इसको कर्व कर दिया गया, आवाज़ रिफ्लेक्ट होके सभी व्यक्ति के पास पहुंच रहा है, ये सुन पा रहे हैं। इसका जो जिस मकसद से बनाया गया है रिसोर्ट हॉल को, सिनेमा हॉल को, कंसर्ट हॉल को, कॉन्फ्रेंस हॉल को, वो फुलफिल हो गया। उसके साथ इस सब के कान में साउंड इम्पैक्ट न पड़े, इसके लिए एज एब्जॉर्बेंट, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी बहुत सारे प्लास्टिक के, बहुत सारे फाइबर के एब्जॉर्बर लगा दिया जाता है साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए। नो वी विल डिस्कस अबाउट रेंज ऑफ हियरिंग। सुनने की क्या रेंज है उसके बारे में समझेंगे। The audible range of sound for human beings extended from about 20 Hz to 20,000 Hz. 1 Hz equal to 1 cycle per second. 1 हर्ज का मतलब क्या हुआ, 1 साइकिल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो कंप्लीट होना चाहिए। साउंड सुनने की ह्यूमन बीइंग की कितनी है कैपेसिटी ऑडिबल, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की साउंड को कोई मनुष्य सुन सकता है। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 के हर्ज। जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के, और कुछ एनिमल्स जैसे कि कुत्ता, वो अप टू 25 किलो हर्ज
वह 25 किलो हर्ज तक के साउंड को सुन सकता है। गॉट इट? 1 किलो हर्ज इक्वल टू 1000 हर्ज। 1 किलो हर्ज बराबर कितना होता है? 1000 हर्ज। गॉट इट? नॉर्मल इंसान का सुनने की क्या कैपेसिटी है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। लेकिन वही चिल्ड्रेन की, बच्चे की क्या है? अप टू 25 किलो हर्ज। साथ में डॉग की भी सुनने की क्या कैपेसिटी है? अप टू 25 के हर्ज, मतलब 25,000 हर्ज तक बच्चा और डॉग सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है। 5 साल का बच्चा, ध्यान रखना है। एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रीक्वेंसी साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड। जैसे ही एज बढ़ते जाता है, उम्र बढ़ता है, तो किसी भी व्यक्ति की सुनने की क्षमता है धीरे धीरे सेंस करने की कम हो जाती है। तो जो कोई भी व्यक्ति 20 हर्ज से कम साउंड फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज, as people grow older their ears become less sensitive to higher frequency sounds of frequency below 20 हर्ज। जो 20 हर्ज से कम के साउंड को सुन सकता है उसको हम क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड में कंसीडर करेंगे और इंफ्रासाउंड में कंसीडर करेंगे। गॉट इट? If we could hear infrasound, we would hear the vibration of a pendulum just as we hear the vibration of the wings of a bee. Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 Hz. Rhinoceros जो होता है communicate using infrasound, कम्युनिकेट करने के लिए वो इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी निकालती है एज लो 5 हर्ज, 5 हर्ज तक। व्हेल्स एंड एलिफेंट्स प्रोड्यूस साउंड इन द इंफ्रासाउंड रेंज। जो व्हेल्स होते हैं और एलिफेंट्स होते हैं वो इंफ्रासाउंड को, रेंज की साउंड को सुन सकते हैं। It is observed that some animals get disturbed before earthquake. Earthquakes produce low frequency infrasound before the main shock waves begin, which possibly alert the animals. Okay. Frequencies higher than 20 kHz are called ultrasound, निक साउंड या अल्ट्रासाउंड। यदि किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है, उसको यदि कोई सुन पा रहा है तो उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड में कंसीडर करेंगे। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन, बैट्स और पोर्पोइसेस। अल्ट्रासाउंड कौन कौन प्रोड्यूस करता है? तो उसमें एनिमल का नाम आता है डॉल्फिन, बैट्स और पोर्पोइसेस। गॉट इट? मोथ्स ऑफ सर्टेन फैमिलीज हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट। These moths can hear the high frequency. मोथ्स एक सर्टेन फैमिली से आती है जिसकी सुनने की वेरी सेंसिटिव हियर इक्विपमेंट, उसके पास जो होता है बहुत ही सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट्स होता है। दिस मोथ्स कैन हियर हाई फ्रीक्वेंसी। मोथ्स हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी सुन सकता है। स्क्वेक्स ऑफ द बैट एंड know when a bat is flying nearby and are able to escape capture. Okay. Rats also play
gains by producing ultrasound. Okay. Hearing aid. People with hearing loss may need a hearing aid. A hearing aid is an electronic battery operated device. The hearing aid receives sound through a microphone. The microphone converts the sound wave to electrical signals. These electrical signals are amplified by an amplifier. The amplification electrical signals are given to a speaker of the hearing aid. The speaker converts the amplified electrical signals to sound and sends to ear for clear hearing. Got it? Now we will discuss about hearing of अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन. अल्ट्रासाउंड का क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में अब हम समझेंगे. 11.5 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स. अल्ट्रासाउंड का क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है. अल्ट्रासाउंड्स आर एबल टू ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स. अल्ट्रासाउंड हर एक पाथ में ट्रेवल कर सकता है. उसके पाथ में कितना भी ऑब्स्टेकल क्यों ना हो वो उसको पार करके देख सकता है, मतलब ट्रेवल कर सकता है अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेडिकल पर्पसेस. अल्ट्रासाउंड का उपयोग मेनली जो है इंडस्ट्रीज में, उद्योग में और मेडिकल पर्पस से किया जाता है. गॉट इट? अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल स्पाइरल ट्यूब, odd shaped parts, electronic components, etc. अल्ट्रासाउंड का काम जनरली किसी भी पार्ट्स को क्लीन करने के लिए और किसी भी हार्ड टू हार्ड प्लेस को देखने के लिए भी यूज किया जाता है. कि यदि उसको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं तो यदि हम अल्ट्रासाउंड उस पर डालेंगे अल्ट्रासाउंड तो हम उसको देख सकते हैं एक मॉनिटर के माध्यम से. उसमें क्या ऑब्स्टेकल है, क्या है, क्या परेशानी है, उसको आगे समझते हैं. स्पाइरल ट्यूब, odd shaped parts, electronic components, etc. Objects to be cleaned are placed in a cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution. Due to the high frequency, the particles of dust, grease and dirt get detached and drop out. The objects thus get throughout cleaned. अल्ट्रासाउंड का उपयोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को क्लीन वगैरह करने के लिए भी किया जाता है. यदि किसी जगह डस्ट हो, ग्रीस हो, डर्ट हो, उसको डिटैच्ड करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं. नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक एंड फ्लॉ इन मेटल ब्लॉक्स. अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके हम इस चीज़ का डिटेक्ट कर पाते हैं. किसी भी कोई भी चीज़ टूटा हुआ है, कोई भी मेटल या नहीं, उसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं, मतलब पता कर पाते हैं कि कहीं से यदि कोई मेटल ब्लॉक यदि गुजरा है या कुछ फ्लो किया है तो यदि कहीं पे क्रैक है या कुछ हो रखा है, कुछ गड़बड़ी है, इशू है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं. इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, ब्रिज, मशीन्स एंड आल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स,
The cracks or holes inside the metal blocks, which are invisible from outside, reduces the strength of the structure. यदि किसी बिल्डिंग ब्लॉक में, किसी ब्रिज में, किसी मशीन में, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट में यदि कोई भी मेटल यदि टूटा हुआ है, उसको आप आउटसाइड से नहीं देख पा रहे हैं, तो आप अल्ट्रासाउंड का प्रयोग, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करके आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव. If there is even a small defect, the ultrasound gets reflected back, indicating the presence of the flow of defect as shown. यदि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी बिल्डिंग में यदि कोई भी मेटल यदि पास आउट हुआ है, यदि उसको बाहर से हम नहीं देख पा रहे हैं, यदि उसमें अल्ट्रासाउंड वेव पास करवाएंगे, तो यदि कहीं पे डिफेक्ट होगा, उस मेटल में यदि कोई डिफेक्ट होगा, तो वो डिटेक्ट करके डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव्स इफ़ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट. यदि कोई भी स्मॉल डिफेक्ट होगा तो अल्ट्रासाउंड क्या करेगा, वो बता देगा. द अल्ट्रासाउंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग. वो अल्ट्रासाउंड क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा वेव को. गॉट इट. हेयर 11.4 अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द डिफेक्टिव लोकेशन इनसाइड अ मेटल ब्लॉक. ओके. ऑर्डिनरी साउंड of longer wavelengths cannot be used for such purpose, as it will bend around the corners of the defective locations and enter the detector. Okay. Ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and form the image of the heart. This technique is called echocardiograph. Ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and form image to heart. This technique is called echocardiography. यदि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करके हम अपने बॉडी के जो हार्ट है और बॉडी के जो भी पार्ट हैं उसके इमेज को देख पा रहे हैं, यदि हार्ट के पार्ट को देख पा रहे हैं उस टेक्निक के माध्यम से जो मॉनिटर में लगा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इकोकार्डियोग्राफी कहेंगे. अल्ट्रासोनिक स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट which uses ultrasonic waves for getting image of internal organs of the human body. अल्ट्रासाउंड स्कैनर क्या होता है, यह एक इंस्ट्रूमेंट है which uses अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव यूज करता है और मनुष्य के ऑर्गन जो हैं, बॉडी जो है उसके इंटरनल ऑर्गन में कोई यदि डिफेक्ट होता है तो उसको मॉनिटर के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है और उसको डॉक्टर देख पाता है. और डॉक्टर में इमेज द पेशेंट ऑर्गन्स सच एज द लीवर, गोल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी एक्सेट्रा. और डॉक्टर उस चीज़ को अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड स्कैनर के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड स्कैनर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है. उससे कोई भी डॉक्टर इंटरनल ऑर्गन्स के, किसी भी पेशेंट के ऑर्गन्स को देख सकता है कि यदि उसके गॉल ब्लैडर में
यूट्रस में, किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है। इट हेल्प्स टू डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज, कोई भी यदि एबनॉर्मेलिटीज है मनुष्य के ऑर्गन में तो उसको डॉक्टर देख सकता है। सच एज स्टोन इन द गॉल ब्लैडर एंड किडनी और ट्यूमर्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स, यदि गॉल ब्लैडर में, किडनी में स्टोन है, ट्यूमर्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स, किडनी में यदि स्टोन है तो उसको देख सकता है। इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर इज अ चेंज ऑफ टिश्यू डेंसिटी। ये अल्ट्रासोनिक वेव बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रेवल करता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो जाता है टिश्यू के माध्यम से ही जाता है बॉडी में। तो जहाँ पे भी एबनॉर्मलिटीज, कुछ अंतर दिखा जाता है, चेंज दिख जाता है, तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करता है और उससे डॉक्टर पता कर पाते हैं कि यहाँ पे इशू है। गॉट इट? दीज वेव्स आर देम converted into electrical signals that are used to generate image of the organ. These images are then displayed on monitor or printed on a film. This technique is called ultrasonography. Ultrasonography is also used for examination of the fetus during pregnancy to detect congenital defects and growth abnormalities. Ultrasound may be employed to break small stones formed in the kidney into fine grains. These grains later get flushed out with urine. अल्ट्रासाउंड के माध्यम से यदि किसी भी इंसान के किडनी में फाइन ग्रेन्स के आकार के यदि स्टोन है तो अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग करके उसको स्टोन को ब्रेक भी किया जा सकता है, स्मॉल स्टोन को ब्रेक किया जा सकता है और उसके बाद वो किडनी में से यूरिन के माध्यम से वो स्टोन को बाईपास कर दिया जाता है, बाईपास हो जाएगा। और अल्ट्रासाउंड का प्रयोग एग्जामिनेशन ऑफ द फोएटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो बच्चा किस हालत में है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, उसको उसके जानकारी के लिए भी अल्ट्रासोनिक ग्राफ का यूज किया जाता है। गॉट इट? नो, वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड। Sound is produced due to vibration of different objects. Okay. Sound travels as a longitudinal wave through a material medium. Okay. Sound travels as successive compression and rarefaction in the medium. Okay. In sound propagation, it is the energy of the sound that travels and not the particles of the medium. Okay. The change in intensity from one maximum value to the minimum value and again to the maximum value makes one complete oscillation. Yes, the distance between two consecutive compression or two consecutive rarefaction is called the wavelength. It is denoted by lambda. The time taken by the wave for one complete oscillation of the density or pressure of the medium is called the time period t. Okay. The number of complete oscillation per unit time is called the frequency. V equal to V बराबर 1 by t. Okay. The speed v, frequency v and wavelength lambda of sound are related by the equation v बराबर lambda v.
The speed of sound depends primarily on the nature and the temperature of the transmitting medium. Okay. The law of reflection of sound states that the direction in which the sound is incident and reflected makes equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of incidence, and the three lie in the same plane. Okay. For hearing a distinct sound, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. Okay. The persistence of sound in an auditorium is the result of repeated reflection of sound and is called reverberation. Okay. Sound properties such as pitch, loudness, and quality are determined by corresponding wave property. Yes. Loudness is a physiological response of the ear to the intensity of sound. Okay. The amount of sound energy passing each second through unit area is called the intensity of sound. Okay. The audible range of hearing of average human being is in the frequency range 20 Hz to 20 kHz. Okay. Sound waves with frequency below the audible range are termed infrasonic, and those above the audible range are termed ultrasonic. Yes. Ultrasound has many medical and industrial application. Got it? So thank you friends. Hope you will learn something new. Got it? Thank you so much for watching this video.